Hello children, welcome back to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 11 mensuration from class 8 maths. In our previous video, we completed the first 6 questions from exercise 11.2. In today's video, we will take up its remaining questions, questions 7 to 11, and then we will be completing this exercise. Before we start, let us recall that the area of a trapezium is given by half into sum of parallel sides into the distance between them. This distance between the parallel sides is also referred to as the height of trapezium. Area of a general quadrilateral is given by half into the length of one of its diagonals into sum of the perpendiculars drawn from the remaining two vertices on this diagonal. Then area of a rhombus is given by half into product of its diagonals, and area of a polygon is obtained by dividing it into smaller regions. These may be triangles or rectangles or trapeziums, and first we find the areas of these smaller regions and then add them up to get the area of the polygon. So now we can start with the 7th question from exercise 11.2. Be ready with your pen and paper and join me. Here it is. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें जहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना हो, तो आप फोकस कीजिए उस रीजन पर जिससे रिलेटेड हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और यहाँ वो रीजन है ये फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हों जहाँ पर हमें किसी रीजन से रिलेटेड कोई कॉस्ट फाइंड आउट करना हो, तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना. पहले हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा, चाहे वो हमसे क्लियरली क्वेश्चन में पूछा गया हो या ना पूछा गया हो. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि हमें इसी को पॉलिश करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे केस में पहले हम उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे. एंड यू कैन इमेजिन द फ्लोर मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप, समवॉट लाइक दिस. So first we will be finding the area of this floor, और फिर एरिया आ जाए तो उसको आप इस रेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो है ₹4 पर मीटर स्क्वायर. तो एरिया को आप ₹4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट आपको मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फ्लोर. यहाँ हमें दी गई है इंफॉर्मेशन, इस फ्लोर पर रोम्बस शेप्ड टाइल्स लगाई गई हैं. यू मे इमेजिन the tiles may be somewhat like this, rhombus shaped, और इन rhombuses के हमें diagonals भी दिए गए हैं 45 सेंटीमीटर एंड देन 30 सेंटीमीटर. इससे हम एक टाइल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. और हमें यहाँ दी गई हैं 3000 टाइल्स. ऐसी एक टाइल नहीं है, ऐसी 3000 टाइल्स हैं जो इस पूरे फ्लोर पर अरेंज की गई हैं. तो जैसे ही हमें एक टाइल का एरिया मिलेगा हम उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें सभी 3000 टाइल्स का एरिया मिल जाए. और ये सभी 3000 टाइल्स इस फ्लोर पर अरेंज्ड हैं. तो एक्चुअली जो इन 3000 टाइल्स का एरिया होगा वो एक्चुअली इस पूरे फ्लोर का एरिया होगा. एंड वंस वी गेट दिस एरिया वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय ₹4 टू गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर. So I hope the baseline is clear regarding the question, and now we will be writing the answer fairly. We take the next page. First we write number of tiles. It is given as 3000. Then area of one rhombus shaped tile. It will be given by half into product of diagonals. This is clear to you? Now we can easily find the area of one single tile. It will be half into diagonals 45 centimeter and 30 centimeter. You can divide this 30 by 2. It will be 45 centimeter into 15 centimeter. जैसे ही हम 30 को 2 से divide करेंगे it will be 15 here. So 45 into 15. This will be equal to, multiply the two numbers, 675 centimeter square. So this is the area of one single tile. Now there are 3000 tiles. So area of 3000 tiles, it will be equal to 3000 into area of
one tile. This will be equal to 3000 into 675. Multiply the two numbers. 3 into 5, it's 15. 1 carried, 22 will come here. 2 carried, 18, 19, 20. So 20 here, and then mark 3 zeros afterwards. With this we get the area in centimeter square. This is 20,25,000 centimeter square. Now the rate has been given in meter square. Cost per meter square is ₹4 and we are getting the area in centimeter square. तो यहाँ पहले इस एरिया को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. फॉर दिस वी नीड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. लेकिन अभी हमारे पास सेंटीमीटर पहले है, तो हम ये रिलेशनशिप इस तरह से लिख सकते हैं. 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 100 को आप यहाँ डिवीजन में ले आइए, ट्रांसपोज कर लीजिए, इस तरह से सोच सकते हैं आप. विद दिस वी गेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. लेकिन हमारे पास 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. दिस नाउ विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर into 1/100 meter. With this we get 1 centimeter square. Multiply the two numbers and then multiply here also. It will be 1/10,000 meter square, and this is the relationship which will help us. 1 centimeter square is equal to 1/10,000 meter square. तो जैसे ही हमें अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो हमें इस वैल्यू को 10,000 से डिवाइड करना होगा. एंड सो हियर वी कैन राइट इट एज 2025000 अपॉन 10,000, एंड देन this will be converted to meter square. Getting it? With this relationship we can write here. Let me erase this in this way. Yes, you can give the reason here. Since 1 centimeter square is equal to 1/10,000 meter square. और ये कैसे आया है? I hope it is clear. With this now cancel these 3 zeros, और अब नीचे एक ही ज़ीरो है, उसको कैंसिल करके पीछे से एक डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा सकते हैं. It will be 202.5 meter square. Now this is the area of 3000 tiles and we are interested in the area of the floor. तो अब क्योंकि ये 3000 tiles फ्लोर पर ही तो अरेंज्ड हैं, तो जो इन 3000 tiles का एरिया होगा वही फ्लोर का एरिया होगा. So we write here now area of floor, this is equal to area of 3000 tiles and this is equal to 202.5 meter square. ये हो गया एरिया ऑफ द फ्लोर. और जैसे ही फ्लोर का एरिया मिलता है, बस अब हमें इसे रेट से मल्टीप्लाई करना है और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें मिल जाएगा. वी टेक नेक्स्ट पेज. Cost of polishing the floor per meter square, it is ₹4. Now total cost of polishing the floor, it will be obtained by multiplying the area by this rate. So this will now be equal to 202.5, as you can see, meter square into ₹4 per meter square. Okay, this will now be equal to, multiply the two, you will get it 4 5s are 20, 2 carried 10, and then 4 2s are 8, and then mark the decimal, it will be 810.0. Now what will be the unit? You can see per meter square का मतलब हुआ, per means divide, so meter square and meter square will be cancelled and you will be left up with only rupees. So actually this is the cost and it will be in rupees. Don't write meter square now with it. This will be ₹810, or simply we can write it as ₹810, and this is your answer, the total cost of polishing the floor. So be clear in your mind, whenever there is a question related to finding the cost, first of all find the area of that region related to which we have to find some cost. जिस भी रीजन से रिलेटेड हमें कोई कॉस्ट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन में क्लियरली पूछा हो या नहीं. एरिया मिलते ही उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें टोटल कॉस्ट इस तरह से मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी टेक
Question 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. You can see this red one. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. यहाँ देखिए आप, इसकी एक साइड तो रोड के अलॉन्ग है और एक साइड यहाँ रिवर के अलॉन्ग है. ये रिवर है, यहाँ पर रोड है. ये है इसकी पैरेलल साइड्स. एंड व्हाट हैज़ बीन सेड, इट्स साइड अलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड. ये जो रिवर के अलॉन्ग साइड है, रिवर के अलॉन्ग जो ये साइड है, ये रोड के अलॉन्ग जो साइड है ये वाली, इसके पैरेलल तो है ही साथ ट्वाइस भी है. ट्वाइस. दिस मीन्स दैट इफ दिस इज x meters in length, then this will be twice of x, that is 2x. अगर हम रोड के अलॉन्ग जो साइड है उसको x मीटर्स माने तो रिवर के अलॉन्ग जो साइड होगी वो होगी 2x मीटर्स. गेटिंग इट? देन वी हैव बीन गिवन इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर. इसका हमें एरिया दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर्स. ये आप देख सकते हैं, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 मीटर्स. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर. ये जो साइड है रिवर के अलॉन्ग, इसकी लेंथ हमको निकालनी है कि ये कितनी लॉन्ग है. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो इजी है. यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है, पैरेलल साइड्स के बीच में रिलेशनशिप दी गई है, हाइट दी गई है, या कह लीजिए दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस दिया गया है. सिंपल है. हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? Yes, we need to apply the formula to find the area of a trapezium. उसमें हम ये सभी वैल्यूज़ रख देंगे और easily हमें आंसर मिल जाएगा. The length of this side along the river. So first of all, let us assume the length of the side along the road, let it be x meters. We write it here. Solution: let the length of the side of the field along the road be x meters. Then the length of the side of the field along the river, it will be twice of it, that is 2x meters. Then we have been given the area of the field, it is 10,500 meters square, and we have been given the perpendicular distance between the two parallel sides, it is 100 meters. You can see the area given and the perpendicular distance between the parallel sides. This is given. Now simple है, we have to apply the formula to find the area. We write here area of trapezium, it is given by half into sum of parallel sides into the distance between them, and in this case it is area of trapezium shaped field. So we will write it also here. Area of trapezium shaped field is equal to half into sum of parallel sides into the distance between them. This will be equal to half into सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये हमने ले ली x मीटर्स, ये हो गई 2x मीटर्स. सो x प्लस 2x एंड देन डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज गिवन 100 meters. You can relate with the figure. This will now be equal to, what is the area of trapezium? This also has been given. In place of this area we can write 10,500. ठीक है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनती मिल रही है. Now just think about it. Can you cancel this 2 by 2? क्या हम ये 2 और ये 2 cancel कर सकते हैं? No, because here this 2x is not independent. It is being added with x. तो यहाँ पर हम 2x के 2 को तो 2 से divide नहीं कर सकते. But yes, we can divide this 100 by 2. We will write here 10,500. This will now be x plus 2x, half into 3x into 100. अब हम 100 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. इट विल गो 50 टाइम्स. सो 10500. दिस इज इक्वल टू 3x इंटू 50. अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 और 50 दोनों को हम LHS में ट्रांसपोज कर सकते हैं. जो अननोन वेरिएबल है यहाँ पर उसको अकेला छोड़ेंगे तभी तो उसकी वैल्यू मिलेगी. सो दिस गिव्स अस 10500 अपॉन 3 इंटू 50. दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर LHS में डिवीजन में आएंगे. दिस विल बी इक्वल टू x. कैंसिल दिस 0. यू कैन इजीली डिवाइड बाय 5. 5 1 टाइम्स. हियर यू विल हैव 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 1 0, 210. Again divide by 3. It will go 70 times. With this we can write x equal to 70 meters. Now what is x? It is the length of the side along the road. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द साइड along the river. देखिए पूछा यही है.
इन द क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, और वो है 2x and we have got the value of x, so we can just multiply this x by 2 into 70, this will now be 140 meters. यही तो पूछा है हमसे, length of the side along the river. We can write in words here, hence length of the field, side of the field, length of the side of the field along the river, this is equal to 2 into 70 equal to 140 meters. Here with this we get the final answer. Okay. The length of the side of the field along the river, it is 2 into 70 equal to 140 meters. अगर हमसे पूछा जाता कि length of side along the road, तो it would have been simply 70 meters. This would have been 70 meters and this is double of it, 140 meters. I hope the question is clear. यहाँ और कुछ भी नहीं, बस एक ट्रेपेजियम दिया गया था, उसका एरिया दिया गया, एक पैरेलल साइड और दूसरी पैरेलल साइड के बीच में रिलेशनशिप दी गई, उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया, फॉर्मूला लिखना था और वैल्यूज़ पुट इन करके अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. ये देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी शेप है ऑक्टागन और आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस. इस सरफेस का एरिया आपको फाइंड आउट करना है एंड इट हैज़ बीन सेड दैट इट इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर का मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी. ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर होगा, दिस वन विल ऑल्सो बी 5 मीटर्स, ये भी 5 मीटर्स, ये भी 5 मीटर्स, ये भी 5 मीटर. रेगुलर का मतलब सब तरफ से बराबर. सो ऑल दीज साइड्स आर 5 मीटर्स इन लेंथ. अब ये एक पॉलीगन है, तो पॉलीगन के केस में हम इसे डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, हर पार्ट का एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे और फिर एड अप करके हमें पूरे ऑक्टागन का एरिया मिल जाएगा. तो आप देखिए, एक तरीका तो यहाँ पर ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए. लेट अस नेम इट ऑल्सो एज A, B, C, D, E, F, G, H. मान लीजिए ये नेम दे दिया हमने. तो अब आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो आप H और C को ज्वाइन कर लीजिए. ऊपर का जो शेप है ये हो जाएगा ट्रेपेजियम. इसी तरह से अगर हम GD को भी ज्वाइन कर लें तो ये नीचे यहाँ पर भी हमें ट्रेपेजियम मिल जाएगा, GDEF, और सेंटर में हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है. बस अब इनकी मेजरमेंट्स हमें दिख ही रही हैं. पैरेलल साइड्स देखिए 5 और ये कितनी है 11 मीटर्स. ये हाइट दी गई है 4, तो हम ट्रेपेजियम का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे ही इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. इसी तरह से रेक्टेंगल के केस में हमें लेंथ पता है 11 मीटर्स, ब्रेड्थ पता है 5 मीटर्स, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर तीनों एरियाज़ को आप एड अप करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का. ठीक है, वी राइट हियर सॉल्यूशन. Let A, B, C, D, E, F, G, H be the regular octagon of side 5 meters. Then area of octagon, this will be equal to area of trapezium. This is A, B, C, H. A, B, C, H plus area of rectangle. This is H, C, D, G. H, C, D, G. Connect with the figure, plus area of trapezium, the third one here at the bottom, it is GDEF. GDEF. ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तीनों को ऐड अप कर देंगे जिससे ऑक्टागन का एरिया हमें मिल जाएगा. We now find area of trapezium. Now area of trapezium, आप देखेंगे जो टॉप और बॉटम पर ट्रेपेजियम्स हैं दोनों के एरिया सेम होंगे क्योंकि इनके मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम है, डायमेंशंस. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A, B, C, H, this is equal to area of trapezium GDEF, and these two areas will be equal to half into
sum of parallel sides into the distance between them. This we know the formula very well. Now place in these values. This will be equal to half into sum of parallel sides. देखिए ये है 5 मीटर्स, ये भी होगा 5 मीटर्स, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो सभी साइड्स 5 मीटर्स लेंथ की होंगी. सो दिस विल बी 5 प्लस दिस वन इज 11 मीटर्स, सो 11. ये हो गई पैरेलल साइड्स का सम. देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज 4, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. ऐसे ही आप इस बॉटम ट्रेपेजियम में देख सकते हैं. दिस इज 11 मीटर्स, दिस इज 5 मीटर्स एंड दिस डिस्टेंस अगेन विल बी 4 मीटर्स. क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो सब तरफ से बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस अगर ऊपर 4 मीटर्स है तो यहाँ पर भी ये 4 मीटर्स होगा. और ऐसे में इन दोनों ट्रेपेजियम्स का एरिया बिल्कुल सेम होगा, दीज टू. एंड सो दिस वन विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 16 इंटू 4. दिस विल बी इक्वल टू, कैंसिल दिस 2 टाइम्स, 16 2 ज़ 32 एंड मीटर स्क्वायर. तो ये भी 32 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, और इसका एरिया भी 32 मीटर स्क्वायर हो गया. ये हमने लिख दिया है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GDEF, बोथ इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर. नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेट अस राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Its name is HCDG. This will be equal to length into breadth. Length है आपकी 11 मीटर्स और breadth है आपकी 5 मीटर्स. So it will be 55 मीटर स्क्वायर. बस अब हमें ये भी एरिया मिल गया है 55 मीटर स्क्वायर. तीनों एरियाज को एड अप कर लीजिए और आपको ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया मिल जाएगा. वी राइट हियर नाउ area of octagon or octagonal surface. This will be equal to 32 from the top, then in the middle we have 55 and then at the bottom again we have 32. So add these three numbers, 2 and 2 4 and 5, it will be 9 here, then 5 and 3 8 and 3 11, 119 meter square. This is the area of the octagonal surface which we were asked. I hope it's clear. Simple है, octagon है तो पहले इसे parts में divide कर दिया, each part का area हमने find out कर लिया according to the measurements and then simply we added them. Next we take question 10. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. This is a park, pentagon shaped, and then for finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. देखिए आप, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्योति ने इस तरह से डिवाइड किया, आप देख सकते हैं सेंटर से, और कविता ने इस तरह से डिवाइड किया. ये वर्टिकली डिवाइड किया गया है और ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है. दिस इज ज्योति's डायग्राम, दिस इज कविता's डायग्राम. व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. तो दोनों तरह से डिवाइड करते हुए हमें इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है. देन कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑल्सो फॉर फाइंडिंग दिस एरिया. तो क्या कोई और तरीका भी है जिससे ये एरिया हमें मिल सकता है? वी विल बी डिस्कसिंग इट. फर्स्ट वी टेक ज्योति's डायग्राम. आप देखिए इस तरह से डिवाइड करने पर हमें दोनों तरफ ट्रेपेजियम्स मिल रहे हैं. लेट अस ऑल्सो नेम दिस फिगर. लेट अस नेम इट एज ABCDE और इस पॉइंट को आप F ले लीजिए. तो अब आपके पास ये एक ट्रेपेजियम हो गया, ये दूसरा ट्रेपेजियम हो गया, और मेजरमेंट्स आप देख ही सकते हैं. दिस इज़ 15 मीटर्स, दिस इज़ 15 मीटर्स, और सेंटर में ये जो साइड है ये है 30 मीटर्स लॉन्ग. तो अगर आप इस ट्रेपेजियम पर फोकस करें तो इसकी पैरेलल साइड्स क्या हो गई? लेट अस हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर. ये 15 मीटर्स पहली पैरेलल साइड, और ये हो गई आपकी 30 मीटर्स सेकेंड पैरेलल साइड. और इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा? आप देख रहे हैं ये कंप्लीट लेंथ है 15, तो दिस विल बी हाफ ऑफ 15, दैट इज 15/2. जो इनके बीच का ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं पैरेलल साइड्स के बीच में. बात समझ में आ रही है? ज्योति's डायग्राम में हमें दोनों तरफ ट्रेपेजियम दिखाई दे रहे हैं. ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल साइड्स ढूंढनी होंगी. वो हमने देखा, एक है 15 मीटर्स लॉन्ग, एक है 30 मीटर्स लॉन्ग. ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है
फिर इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज़ 15/2 मीटर्स। तो इस तरह से हम फर्स्ट ट्रेपेजियम का और फिर सेकेंड ट्रेपेजियम का एरिया भी सेम ही होगा एज द फर्स्ट वन। तो दोनों का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और एड अप करके हमें पेंटागनल पार्क का एरिया मिल जाएगा। वी टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। वी राइट हियर फर्स्ट वे बाय ज्योति's diagram. Area of pentagonal park, it will be equal to area of trapezium. Give the name in the figure. AB, not AB, it will be AFDE. AFDE. पहला ट्रेपेजियम तो ये हो गया AFDE, ये फर्स्ट ट्रेपेजियम, प्लस एरिया ऑफ trapezium. What will be the second name? ABCF. 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 ये इस तरह से. Now, both these areas are equal, so we can write them 2 times area of trapezium AFDE. Why we have written 2 times? Since area of AFDE, this is equal to area of ABCF. ये जो एरिया है AFDE, ये जो एरिया है AFDE, this will be equal to area of ABCF. ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। ऐसे में हमने दोनों को अलग अलग लेने की बजाय इस सिंगल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हाउ वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम? इट विल बी 2 into half into sum of parallel sides into distance between them. This is the formula we know very well. तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई कीजिए पैरेलल साइड्स. दिस विल फर्दर बी इक्वल टू 2 into half into sum of पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स ये हमें दी गई है 15 मीटर्स लॉन्ग और ये कंप्लीट लेंथ दी गई थी 30 मीटर्स लॉन्ग. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ 15 मीटर्स एंड दिस वन इज़ 30 मीटर्स. तो यही हमने यहाँ लिखा है 15 + 30, ये हो गया sum of parallel sides into the distance between them. This one you can see from here, it is 15/2 as we discussed just now. So here we will write 15/2. With this we can cancel this 2/2. This will now be equal to 15 + 30, 45 हो जाएगा. ये 45 into 15/2 multiply 15 5s are 75, 7 carried, 15 4s are 60 plus 7 it will be 67, 675/2. Divide the 2, you will get it 2 3s are 6, 3s are 6, 7s are 14, 105 times 10, 337.5 and the unit will be meter square. So this is the area of the pentagonal park by ज्योति's diagram. ज्योति ने जैसे डिवाइड किया पेंटागनल पार्क को 2 पार्ट्स में, 2 ट्रेपेजियम्स में. हमने यहाँ पर दोनों ट्रेपेजियम्स देखे इक्वल हैं, इनका एरिया इक्वल होगा और ऐसे में हमने ये इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ दिस पेंटागनल पार्क. I hope it's clear. This was Jyoti's way. Next we will find the same area by Kavita's diagram. We have here by Kavita's diagram. और अब कविता ने इस तरह से दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है पेंटागनल पार्क को. So here area of pentagonal park, this will be equal to area of triangle ABE plus area of this one will be the square now, square EBCD. ये दोनों का सम करने से हमें एरिया मिलेगा पेंटागनल पार्क का. देखिए आप यहाँ पर हमें ये पता है 15 मीटर्स है, दिस इज़ अगेन 15 मीटर्स, दिस इज़ ऑल्सो 15 मीटर्स, दिस इज़ ऑल्सो 15 मीटर्स. तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर्स. अब ऊपर जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? फॉर दिस वी नीड द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट.
तो बेस तो हो गई ये साइड 15 मीटर्स, और ऐसे में हमें ये हाइट की लेंथ भी चाहिए होगी। ये कैसे मिलेगा? हमें पता है कि टोटल लेंथ पूरी ऊपर ए से लेकर यहाँ बॉटम तक ये टोटल लेंथ है 30 मीटर्स। अब 30 में से ये है 15, तो ऊपर की कितनी हुई? 30 माइनस 15, इट विल अगेन बी 15 मीटर्स द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। ये पूरी 30 में से ये 15 माइनस कर लीजिए, जो ऊपर की लेंथ हुई ये भी 15 मीटर्स हुई। सो हियर वी विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, दिस विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट plus here this area of square is side square, we know this. Now this will be equal to half, base कितना हो गया? It will be EB into this height. This height is again, we can name it, or let us write the number straight away without writing this alphabet form. We can write straight away base, it is 15 meters, and height, it is again 15 meters. So this is the area of the triangle plus area of square, it is side square or simply 15 square. Now this will be equal to half into, what is 15 into 15? It's 225, plus here again 15 square is 225. Now divide 225 by 2, it will be 112.5, plus here we have 225. Add the two numbers, इसमें आप डेसिमल लगाकर 0 लिख सकते हैं, and then you will have here 5, then we have 5 and 2 7, here we have 337.5 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें एरिया मिल गया इस सेम पेंटागनल पार्क का बाय कविताज डायग्राम। कविता के मेथड से हमने, देखिए वही सेम आंसर मिल रहा है जो ज्योति के केस में आया था, वही आंसर हमें मिल रहा है कविता के केस में। ज्योति ने वर्टिकली स्प्लिट किया था इस रीजन को 2 ट्रेपेजियम्स में, और कविता ने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में, और हमें सेम एरिया मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन is there any other method also by which we can find this area? Yes, how we can find? If we now just go back at this shape and now let us produce its side. यहाँ पर हम अगर इस साइड को प्रोड्यूस करें, मान लीजिए ये है साइड, और इसको यहाँ आगे बढ़ाएं इस पॉइंट तक, और ऐसे ही इधर से इस साइड को आगे बढ़ाएं इस पॉइंट तक, और फिर इन दोनों को हम मिला लें। लेट अस नेम दीज पॉइंट्स। ये तो हमने A लिया ही था, ये B लिया था, C D E, मान लीजिए ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट N। तो ऐसे में हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है, और इस रेक्टेंगल में से अगर हम इन ट्रायंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, दीज 2 ट्रायंगल्स, तो हमें पेंटागनल पार्क का एरिया मिल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे मिलेगा? वी नो द लेंथ, दिस वन इट इज़ 30 मीटर्स, और ये ब्रेड्थ है आपकी 15 मीटर्स। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हो जाएगा 30 इंटू 15। अब इसमें से माइनस कर देते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, 2 times द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एंड हाउ टू फाइंड दिस एरिया? फॉर दिस वी नीड हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट चाहिए। हाइट दिस वन इज़ 15 मीटर्स, अभी हमने बात की थी ये पूरी 30 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो रिमेनिंग जो ऊपर की ये साइड है ये भी 15 मीटर्स हो गई। तो ये तो हमें मिल गई इस ट्रायंगल की हाइट 15 मीटर्स। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर इट विल बी मोर इजी टू हाईलाइट। 15 मीटर्स ये हो गई हाइट, पूरे 30 में से ये 15 माइनस करने पर हाइट हो गई इस ट्रायंगल की 15 मीटर्स, और ऐसे ही इस ट्रायंगल की भी 15 मीटर्स। अब अगर हम ये बेस की बात करें तो ये कैसे मिलेगा? हमें पता है ये कंप्लीट लेंथ है 15 मीटर्स, तो ये कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ 15, सो 15 बाय 2 मीटर्स। तो अब हमें इस ट्रायंगल का बेस मिल गया 15 बाय 2 मीटर्स, हाइट मिल गई 15 मीटर्स, हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे इसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए। और ऐसे में रेक्टेंगल के एरिया में से हम माइनस करते हैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। वी टेक द नेक्स्ट पेज एंड देन राइट इट ऑल वेरी फेयरली। हियर वी टेक देम अनदर वे। फर्स्ट प्रोड्यूस साइड DE, देखिए साइड DE को बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना मतलब बढ़ाना है टू पॉइंट M, एंड साइड CB टू पॉइंट N, CB को बढ़ाया N तक, देन जॉइन MN पासिंग थ्रू A, MN को जॉइन कर दिया A से पास करते हुए, देन MNCD, MNCD इट इज़ अ रेक्टेंगल,
and then area of pentagonal park, this will be equal to area of rectangle MNCD minus area of triangle MEA plus area of triangle ANB. ये समझ रहे हैं आप? हम इस पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, दिस वन एंड दिस वन. ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम माइनस करने वाले हैं पूरे रेक्टेंगल में से. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, this will be, we know this is 15 meters and this complete length is 30 meters. So 30 into 15, ये तो एरिया हो गया रेक्टेंगल का. माइनस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल MEA, we know this one is 15 by 2 and here we have 15. So half base is 15 by 2 into height is 15 plus again it is of same dimensions, so half into 15 by 2 into 15. With this we get the areas related to this figure. Now we will be simplifying. This will be 15 into 3, it's 45, and then 450 minus here we will get 225 by 4 plus 225 by 4. We are getting this 225 by 4 two times. So we can write it 2 into 225 by 4. 2 बार मिल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. This will go 2 times. This will now be equal to 450 minus 225 by 2. It will be 112.5. अब आप माइनस कर लीजिए और देखते हैं वही एरिया मिल रहा है या नहीं. 450.0, here we have minus 112.5. 10 minus 5, it's 5, cancel, it will be 9 minus 2, 7, 4 minus 1, 3, 4 minus 1, 3, 337.5 मीटर स्क्वायर. और ये वही एरिया है जो कविता और ज्योति के मेथड से मिला था हमें. जस्ट हैव अ लुक. We got the same area, 337.5 meter square, 337.5 meter square, and in this way we have found the same area by yet another method. I hope this method is also very much clear. यहाँ हमने क्या किया, इन साइड्स को प्रोड्यूस करा और जिससे एक रेक्टेंगल बन गया. रेक्टेंगल के एरिया में से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया माइनस किया. Just by looking at these measurements, we got the length of base and height related to these triangles, and then by subtracting and solving, we got this much area. I hope it's clear. Next we have one more question. Question 11. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter by 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. यहाँ आप देख सकते हैं एक फोटो फ्रेम है और यहाँ पर आउटर डायमेंशंस आप देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर ये दिया गया है. इनर डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेड्थ दी गई हैं 16 सेंटीमीटर एंड देन 20 सेंटीमीटर. डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, आउटर वंस एंड इनर वंस. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन. अब ये जो 4 सेक्शन बन रहे हैं इनका एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले तो हमें इनकी शेप आइडेंटिफाई करनी होगी, उसी से तो हम रिलेट करेंगे कि कौन सा एरिया का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा. एंड यू विल सी दीज शेप्स आर ट्रेपेजियम्स. ये चारों ही ट्रेपेजियम शेप के हैं और ऐसे में हम यहाँ अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला. एंड फॉर दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई द पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर ईच ट्रेपेजियम. तो पैरेलल साइड्स तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज़ 24 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर है. अब इनके बीच का डिस्टेंस ये हमें पता करना है और ऐसे ही यहाँ पर भी इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है. ये 16 है तो ये भी 16 होगा, नीचे 16 है ये भी 16, ये 24 है तो ये भी 24 होगा. अब ये हाइट कैसे मिलेगी या ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में. ऐसे में हम कंसिडर करेंगे ये कंप्लीट लेंथ जो है 28 सेंटीमीटर और ये इनर लेंथ जो है 20. अब अगर हम 28 में से 20 को माइनस करें, दिस विल बी 8 सेंटीमीटर
और अब 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं हाफ हाफ, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। तो एक्चुअली ये जो डिफरेंस है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 4 सेंटीमीटर विल बी द हाइट एट द टॉप एंड 4 सेंटीमीटर विल बी द हाइट एट द बॉटम। ये जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच में ये 4 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर है। और यहाँ कहा भी गया है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो जैसे ही हमने यहाँ 28 में से 20 माइनस किया, 8 आ गया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ऊपर नीचे डिवाइड किया, 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल लेंथ है 24 और बीच में ये है 16। तो 24 माइनस 16 करेंगे और उसको फिर आप देखेंगे कि दिस वन विल अगेन बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पूरी 24 माइनस 16 करेंगे तो आपको ये पूरा रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। और फिर आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट है तो इसको भी आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। 8/2 इट विल बी 4। सो अगेन दिस विल बी 4 सेंटीमीटर्स एंड दिस वन विल बी अगेन 4 सेंटीमीटर्स। तो आप देख रहे हैं ये इन ट्रेपेजियम्स में पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें पता है 20 और 28 और इनके बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना आप कि 24 माइनस 16 किया तो 8 सेंटीमीटर आया। अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। ऐसे ही 28 माइनस 20 किया हमने तो 8 आया और वो ऊपर नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसलिए 2 से डिवाइड किया और 4 सेंटीमीटर मिल गई हमें विड्थ ऑफ ईच सेक्शन। ठीक है, तो बस अब हमें सभी ट्रेपेजियम्स की पैरेलल साइड्स पता है, विड्थ पता है या कह लीजिए उनके बीच का डिस्टेंस, तो हम इनका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वी राइट हियर द 4 सेक्शंस ऑफ द फ्रेम आर ट्रेपेजियम्स इन शेप। आप देखिए ये चारों सेक्शंस ट्रेपेजियम है शेप में। लेट अस नेम देम एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज शोन इन द फिगर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ये कैसे मिलेगी हाइट? आप 28 में से माइनस कीजिए 20, यू विल गेट इट 8। 28 में से 20 माइनस किया 8 सेंटीमीटर बचा। अब उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो डिवाइड देम बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इससे हमें हाइट मिल गई फर्स्ट वाले की 4 और थर्ड वाले की भी 4। इसी तरह से हाइट ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज फोर्थ, इनकी कैसे मिलेगी? ये 24 माइनस 16 कीजिए, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 2 पार्ट्स में बट रहा है, लेफ्ट और राइट में, तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड दिस वन विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगेन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। With this now we can easily find the areas. First we will find the area of first and third trapezium. We write here area of trapezium first and area of trapezium third. These will be equal and these will be equal to half into sum of parallel sides into the distance between them. I hope the formula is clear as well as learnt. And this will now be equal to half into sum of parallel sides. देखिए कितनी हो गई sides? 16 और 24, ये हो गई parallel sides। 16 plus 24, ये भी 16 और ये भी 24 है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड का एरिया सेम रहेगा। And then distance between them, it is 4, we found it. So half into, add the two numbers 6 and 4, 10, 40 into 4, this will be 20 into 4, this will be 80 centimeter square. With this we have found the areas of first and third regions. Then we will find the areas of sections second and fourth and their areas will be equal, half into sum of parallel sides. You will see parallel sides 28 and 20, so half into 20 plus 28 into distance between them, it is again 4 centimeters. This will be half into 48 into 4, this will be 48 into 2, cancel 4 by 2, this will be 96 centimeter square. With this we have found these ones as 80 centimeter square, this is also 80, this third one, this one is 96 centimeter square and this is also 96 centimeter square. We write the final answer here. Hence the areas of first, second, third and fourth sections are 80 centimeter square,
then 96 centimeter square, then 80 centimeter square and then 96 centimeter square respectively. और यही हमसे पूछा था, देखिए 80, 96, 80, 96 और वही हमने यहाँ पर एरियाज लिख दिए. With this we complete exercise 11.2. I hope all the questions are very much clear. Practice them again. Bye for now.